Hello friends, welcome back to Rupali channel. Okay, in my previous video I have discussed about introduction to this digestive system. Okay, and now I am continuing in this video our discussion about the stomach. So let us start. So see, the stomach, it is a sac-like J-shaped organ of the alimentary tract, and it is situated in between the esophagus and the duodenum. Okay, so here see, this is the stomach. Okay, it is J shaped organ, right? ओके, यहाँ पे ऊपर का अगर पार्ट हम देखेंगे तो ये क्या है, ईसोफेगस है. नीचे का पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, डिओडिनम है. यहाँ से डिओडिनम स्टार्ट होता है. सो इन बिटवीन ईसोफेगस एंड डिओडिनम ये स्टमक जो है वो सिचुएटेड रहता है, राइट. और ये जे शेप्ड है ऑर्गन, ठीक है, और इट इज़ सैक लाइक, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है ये. So stomach, it is a sac-like J-shaped organ of the alimentary tract, and it is situated in between the esophagus and the duodenum. Okay, exact location of stomach is, it is situated in the epigastric, umbilical and left hypochondriac region of the abdominal cavity. So see here, this particular region, it is the epigastric region. Okay, this particular region, it is the umbilical region, and this particular region, it is the left hypochondriac region. Okay, so this stomach, it will be covering all these regions, that is the epigastric region, umbilical region and the left hypochondriac region of the abdominal cavity. So this complete cavity, it is known as the abdominal cavity. Now about the structure of the stomach. So see, stomach, it is divided mainly into three regions as fundus, body and the pylorus. ठीक है, स्टमक हम तीन रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं एज फंडस, बॉडी एंड देन पाइलोरस. सो सी हियर फंडस, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक. ठीक है, यहाँ पे कार्डियक ओरिफाइस रहता है, राइट. और कार्डियक ओरिफाइस के ऊपर का जो पार्ट आता है उसको हम क्या बोलेंगे, फंडस. बॉडी जो है ये मिडल है, लोकेटेड इन बिटवीन फंडस एंड देन पाइलोरस, राइट. So it is the middle and it is the largest part of the stomach. You can see here, it is the largest part of the stomach. And then pylorus. So the lower part of the stomach, which is continuous with the duodenum, and at its distal end, pyloric sphincter, it will be present. Okay, this pyloric sphincter, it will be guarding the opening between the stomach and the duodenum. Okay, so this lower part of the stomach, which is continuous with the duodenum, it is known as the pylorus. ठीक है, स्टमक तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, तीन रीजन्स में. ऊपर की जो रीजन रहती है उसको बोलेंगे फंडस, नीचे की जो रहती है उसको बोलेंगे पाइलोरस. और फंडस और पाइलोरस के बीच में प्रेजेंट रहता है मिडल लार्जेस्ट पार्ट, विच इज़ नोन एज द बॉडी. Now stomach, it has two curvatures, lesser curvature and then greater curvature. So see here, this one, it is the lesser curvature, whereas this one, it is the greater curvature. Names are self explanatory. ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम, ये क्या है, छोटा कर्वेचर है, लेसर कर्वेचर. ओके, और ये जो है ये बड़ा है, ग्रेटर कर्वेचर. सो लेसर कर्वेचर, इट इज शॉर्ट कॉनकेव कर्व है, दिखाई दे रहा है हमें, ये कैसा है, कॉनकेव कर्व है. ओके, इसका लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ये राइट साइड में है स्टमक के. ओके, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द डिओडिनम. ठीक है, यहाँ से ओपनिंग है किसकी, डिओडिनम की. यहाँ से ओपनिंग है किस चीज़ की, ईसोफेगस की. तो यहाँ से ये लेसर कर्वेचर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है. Okay, and it lies on the posterior surface of the stomach. Lesser curvature, it lies on the posterior surface of the stomach. Now the greater curvature. So see, this greater curvature, it is near about 4 to 5 times more long as compared to this lesser curvature. Okay, lesser curvature कैसा है, concave है, but this greater curvature जो है ये कैसा है, तो convex है, right, convex curve है.
लेसर कर्वेचर स्टमक के राइट साइड पे है, बट ग्रेटर कर्वेचर स्टमक के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और ये जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो फिर से, ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस, राइट, टू द ओपनिंग इनटू द डिओडिनम। जैसा लेसर कर्वेचर का हमने बताया था वैसे ही उसी ओपनिंग से स्टार्ट हो रहा है ये ग्रेटर कर्वेचर। Now about the sphincters of the stomach. So see, there are two sphincters that are present in the stomach, and these are the cardiac sphincter and then pyloric sphincter. So cardiac sphincter, here the stomach, it is continuous with the esophagus at the cardiac sphincter. देखो यहाँ पे ये है esophagus, ठीक है, और ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक रीजन। सो यहाँ पे जो स्फिंक्टर लोकेटेड रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस है विद द ईसोफेगस। ओके, पाइलोरिक स्फिंक्टर एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है। पाइलोरस का जो सेक्शन है उसके आगे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे देखो ये जो रीजन है ये है पाइलोरिक रीजन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, so here stomach, it is continuous with the duodenum at this pyloric sphincter. Now when the stomach is inactive, that is when there is no food in the stomach, here pyloric sphincter, it is relaxed and it is open. Okay, but when the stomach contains food, this particular sphincter, it is closed. क्या बोल रहे हैं हम, जब स्टमक खाली रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, तब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो कैसा रहेगा, तो खुला रहेगा, रिलैक्स रहेगा और ओपन रहेगा। बट जब स्टमक में फूड रहेगा तो ये स्फिंक्टर जो है ये क्लोज रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम व्हाट आर दिस गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगे। सो सही कॉइल्ड सेक्शंस ऑफ टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द लेयर्स ऑफ द स्टमक, दीज आर नोन एज द गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगी। सो कॉइल्ड सेक्शंस ऑफ टिश्यूज देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉइल्ड सेक्शंस है टिश्यू के, ठीक है, इनको ही बोलेंगे हम गैस्ट्रिक फोल्ड्स, और इन्हीं को दूसरा नाम क्या है, तो रुके। सो सी यहाँ पे, सो दीज गैस्ट्रिक फोल्ड्स, दिस विल बी प्रोवाइडिंग द इलास्टिसिटी बाय अलाउइंग द स्टमक टू एक्सपांड व्हेन अ बोलस एंटर्स इट, ठीक है। जब फूड मटेरियल जो है वो स्टमक में जब एंटर करेगा, ठीक है, फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक, वो आएगा बोलस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बोलस स्टमक में आ रहा है तो स्टमक जो है वो एक्सपांड हो जाएगा। तो ये एक्सपांशन पॉसिबल क्यों है, ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ दिस गैस्ट्रिक फोल्ड्स। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लेयर्स और द वॉल्स ऑफ द स्टमक, ठीक है। सो जीआईटी में हमने जो बोले हुए थे ना 4 लेयर्स, वो सारे 4 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे स्टमक में भी, ठीक है। बट यहाँ पे जो मसल लेयर रहेगी, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो रहेगी मसल लेयर में वो रहेगी लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स से बनी हुई, मिडल लेयर जो है वो बनी रहेगी सर्कुलर फाइबर्स से, और इनर लेयर जो है वो बनी रहेगी ऑब्लिक फाइबर्स से। सो सी हियर दिस इज़ द मसल लेयर, ठीक है। मसल लेयर 3 लेयर्स बोल रहे हैं हम इसमें। देखो आउटर मोस्ट लेयर जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स की रहेगी, मिडल लेयर जो है ये सर्कुलर फाइबर्स की बनी हुई रहेगी, राइट, और इनर लेयर जो है ये ऑब्लिक फाइबर्स की बनी हुई रहेगी, ठीक है। इसके बाद म्यूकोसा। सो म्यूकोसा लेयर जो है इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक, ओके, एंड इट विल रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं हम, म्यूकोसा लेयर जो है ये इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की, और ये क्या करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगी स्टमक में, ओके। एंड ऑल्सो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, दीज आर प्रेजेंट बिलो द surface of mucosa which secretes gastric juice into the stomach, ठीक है। म्यूकोसा में क्या बोल रहे हैं हम कि न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ दिस म्यूकोसा, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है इनका मेन काम क्या है, तो ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगी और उसको पोर करेगी इनटू द स्टमक। उसके बाद सब म्यूकोसा। सो सब म्यूकोसा जो है
It contains nerves, blood vessels, and it will support the mucosa. So see, this is the submucosa layer. It is located in between the muscle layer and the म्यूकोसा लेयर. ये सब म्यूकोसा लेयर जो है ये सपोर्ट करेगी म्यूकोसा को, ठीक है. और सब म्यूकोसा लेयर जो है इसी में नर्व्स रहेगी, ब्लड वेसल्स रहेगी और ये सपोर्ट करेगी दिस म्यूकोसा को, ठीक है. और बाद में अपने नीचे की लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा की बनी हुई रहेगी, उसके बाद सब सिरोसा रहेगा, उसके बाद मसल लेयर है, फिर सब म्यूकोसा है और इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा. Now what are the functions of the stomach? So see here, temporary storage of food allowing the time for the digestive enzymes like pepsin to act. Okay, stomach में temporary storage होगा food का, जिससे थोड़ा सा समय मिल जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और पेप्सिन को फूड पर एक्ट करने के लिए, ठीक है. यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी होगा फूड का. सो यहाँ पे 3 स्मूथ मसल लेयर्स जो है स्टमक की, ठीक है, वो इनेबल करेगी चर्निंग एक्शन. ओके, गैस्ट्रिक जूस इट विल बी एडेड एंड द कंटेंट्स आर लिक्विफाइड टू फॉर्म अ काइम. क्या बोल रहे हैं हम, जो फूड मटेरियल स्टमक में आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर चर्निंग एक्शन जो है वो होगा स्टमक से. तो ये चर्निंग एक्शन किसके कारण हो रहा है, तो जो 3 लेयर है स्मूथ मसल की, दिस विल इनेबल द स्टमक टू कैरी आउट दिस चर्निंग एक्शन एज वेल एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, इन दिस पर्टिकुलर स्टेज gastric juice it is added and the contents are liquefied to form the chyme. Then in the stomach, limited absorption of water, alcohol and some lipid soluble drugs it will take place. Okay, then non-specific defense against the microbes it will be provided by the hydrochloric acid. So gastric juice में जो hydrochloric acid present रहता है वो काफ़ी strong रहता है, concentrated रहता है. इसका pH रहता है in the range of 2 to 4. और so ये क्या करेगा, defensive action provide करेगा against the microbes. Then it will prepare the iron for the absorption. Then production and secretion of intrinsic factor it will occur in the stomach. This intrinsic factor it is required for the absorption of vitamin B12. Then in the stomach, secretion of the hormone gastrin it will be also carried out, and then regulation of the passage of gastric contents into the duodenum. So these are the functions of the stomach. Now we will look after the composition of this gastric juice. So see, when the meal it has been taken, the food accumulates in the stomach in layers. Now the muscle contraction it causes churning movement that breaks down the bolus and mixes it with the gastric juice. When the muscles of the stomach are active, the pyloric sphincter it remains closed. After the contents are sufficiently liquefied, the strong peristaltic contractions of the pyloric antrum forces gastric contents through the pylorus into the duodenum in small spurts. तो अभी हमने जो पिछले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था वही सब पार्ट है ये, ठीक है. हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक बार हम खाना खा ले, उसके बाद ये फूड मटेरियल जो हमने खाया हुआ रहता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इन द स्टमक इन लेयर्स, ठीक है. फिर यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इट विल कॉज चर्निंग मूवमेंट विच विल ब्रेक डाउन द बोलस एंड मिक्स इट विद द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है. जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण चर्निंग मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, और बोलस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये मिक्स हो जाएगा विद द गैस्ट्रिक जूस. Now when the muscles of the stomach are active, pyloric sphincter it remains closed, ठीक है. यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो क्या कर रहा है, स्टमक में से डिओडिनम में फूड पास होने से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है. ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज रहेगा जिसके कारण ये चर्निंग मूवमेंट जो है वो स्टमक में प्रॉपरली हो जाएगी, ठीक है. आफ्टर द कंटेंट्स आर सफिशिएंटली लिक्विफाइड, हियर द स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम विल टेक प्लेस. और ये जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे ये क्या करेंगे, ये फोर्स करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट्स को थ्रू द पाइलोरस इनटू द डिओडिनम इन स्मॉल स्पर्ट्स. नाउ ये जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, ये सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस का कौन करेगा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करेगी.
और गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट क्या क्या रहेगा? इट कंटेन्स वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इंट्रिंसिक फैक्टर, देन पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। सो ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये मेनली फैट पे एक्ट करेगा और उसका कन्वर्जन कर देगा फैटी एसिड्स में। ठीक है, पेप्सिनोजन जो है ये मेनली प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिक्वायर्ड रहेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा बहुत सारे फूड मटेरियल्स का। ठीक है, डाइसैकेराइड्स वगैरह रहेंगे तो उनका। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिफेंसिव मैकेनिज्म में भी पार्ट लेगा, यानी ये प्रोटेक्ट करेगा स्टमक को फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा। ओके, ड्यू टू इट्स लोअर pH, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ये। ठीक है, और म्यूकस है तो ये म्यूकस कोटिंग जो है ये प्रिवेंट करेगी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को फ्रॉम द एसिड इंजुरी। एंड अलॉन्ग विथ ऑल दिस कंटेंट्स गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट रहेगा? तो मिनरल सॉल्ट्स और वाटर। ठीक है, अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इट इज़ प्रोड्यूस पर डे। और गैस्ट्रिक जूस का pH जो है वो रहेगा इन द रेंज ऑफ 2 to 4। So there are 3 phases of gastric secretion, and these are the cephalic phase, gastric phase and intestinal phase. So cephalic phase, so your secretion of the juice, it will occur in response to sight, smell and thought of the food, and it is known as cephalic phase. It is the result of reflex stimulation of the vagus nerve. क्या बोल रहे हैं? सिफेलिक फेज या ऐसी फेज है जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होगा इन रिस्पॉन्स टू द साइट, स्मेल एंड थॉट ऑफ फूड। यानी हमने यहाँ पे खाना खाया हुआ भी नहीं रहता है, सिर्फ वो खाना दिख जाने से, ठीक है, या फिर उसके फ्लेवर से, ठीक है, या फिर उसके थॉट से भी क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस का सीक्रीशन हो जाएगा। तो इस फेज़ को हम क्या बोलते हैं? सिफेलिक फेज। ठीक है, और ये किस कारण होता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व। इसके बाद सेकेंड फेज जो है वो है गैस्ट्रिक फेज। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंट्री ऑफ द फूड इन द स्टमक विल ऑकर एंड इट विल स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन गैस्ट्रिन विच विल एंटर इन द ब्लड। दिस हार्मोन ऑन रीचिंग through blood to the gastric glands secretes the secretion of or the enhances the secretion of gastric juice. So this phase it is known as gastric phase. देखो यहाँ पे क्या होता है? एंट्री हो जाती है फूड मटेरियल की स्टमक में और ये स्टिम्युलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन जो है वो फिर एंटर हो जाता है ब्लड में। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, और ये इन्हांस करेगा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सो दिस फेज इट इज़ नोन एज गैस्ट्रिक फेज। And the last one it is the intestinal phase. So in this phase the secretion of the juice it reduces in response to the hormone complex enterogastrone that is released from small intestine as soon as food from the stomach enters the intestine. ठीक है, फेज का नाम ही क्या है? इंटेस्टिनल फेज है। सो यहाँ से फूड मटेरियल क्या होगा? स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस फेज में क्या हो जाएगा? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन complex enterogastrone which will be released from the small intestine as soon as the food material enters into the intestine. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स लूँगी अबाउट द इंटेस्टिनल जूस, देन पैनक्रियाटिक जूस एंड लीवर एंड देन बाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।